samada kadabe. Ruha dalama sheri handori bakhadabam. Mashi handalabe. Thank you, Jesus. Ruma sabriyan daleba sakriyan dalama shukran dabeha. The Lord's name be glorified. Bulmaza hinda kede beri hansa kada. The Lord Jesus is present with us. Ruma shadala में beri hansa kada bom. प्रभु परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति हमारे पास है। Elahinda rama shandoli mari ma sakriya dalbediha. वो चाहता है कि हम अपने हृदयों को खोलें। Lama lama khadabe riha sabrta lami ushmada huttarbi ro kheri hanta karandalabe rohin shado lima tarihan sandala. प्रभु परमेश्वर की पवित्र आत्मा अपने आप को हम सबों के ऊपर प्रकट कर रही है। रोहे मसीहा दलमा शाकुर हिंदरी बेदी हंसा करा दला। मसीहा के द्वारा उसकी महिमा हमारे ऊपर प्रकट होगी। So we are going to wrestle now. अब हम लोग एक तरीके से जिसको बोलते हैं आत्मिक कुश्ती लड़ेंगे। Because it is WWE, no longer WWF. अब आप लोग प्रोग्राम देखते होंगे टीवी पे WWE, हम उसको बोल रहे हैं WWF होने जा रहा है। And this is WWS. And this is WWS. और WWS वो होगा Spiritual wrestling. आत्मिक, जो S के मतलब है आत्मिक, स्पिरिचुअल युद्ध होगा। Spiritual wrestling. Spiritual wrestling. So let us look to John chapter 19 verse 30. हम परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की सुसमाचार को निकाल लें और उसके 19वें अध्याय के और 30वां पद। कौन सा? 30th verse. 30वां पद। यूहन्ना 19 और उसका 30वां पद। Jesus said, "It is finished." यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु ने कहा, जब यीशु ने ये कहा, "It is finished." पूरा हुआ। और उसने कहा पूरा हुआ। It is finished. पूरा हुआ। It is finished. पूरा हुआ का मतलब है यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर किसी कार्य को करने के लिए आए थे। This means that Jesus came from heaven to earth to do this. परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर मनुष्य बनकर किसी कार्य को करने आया था। So the Son of God became the Son of Man to do a special work. और वो टास्क, जो टास्क था, जो कार्य था, उसे पूरा करने के लिए आया था। The task that was before him, he wanted to finish it, fulfill it. और ये पूरे तरीके से खत्म हुई क्रूस के ऊपर। And this was completed on the cross of Calvary. प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां हुई, There were many prophecies about the Lord Jesus Christ. यदि आप देखेंगे निर्गमन की किताब और उसका not निर्गमन, that is Deuteronomy chapter 18 from verse 14. व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय और उसका 14वां पद, यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी है। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने वाला है शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाली हैं और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। Those people who are they believe. I'll read that for you in English. Deuteronomy chapter 19. 18. Verse 14. And verse 14. Up to verse 18. 18 पद तक. Yeah. So this is the word of the Lord that says here. 14 पढ़ दें. Yeah. 14 verse, which says here, for these nations which you will dispose, listen to the soothsayers and diviners. But as for you, the Lord your God has not appointed you such. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना।
Then verse 15 says, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst, and you will from among your brethren, and you will listen to him. ये तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी. According to all your desires of the Lord your God in Mount Horeb, in the day of the assembly, saying, let me not hear again the voice of the Lord my God. मुझे न तो परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना पड़े और न बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं. तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस बात के लिए उसे आज्ञा दूं वही करेगा और वही सुनाएगा. And verse 18 and 19 says, I will raise up for them a prophet like you from among their brethren, and he will put my words in his mouth, and shall speak to them all that I have commanded him. And it shall be that whoever will not hear my words which he speaks in my name, I will require it from him. और जो मनुष्य मेरे वचन और वो मेरे नाम से कहेगा न ग्रहण करेगा, मैं उसका उससे हिसाब लूंगा. And it shall be that whoever will not hear my words which he speaks in my name, I will require of him. यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी मूसा नबी ने की. So Moses the prophet has prophesied about the coming of our Lord Jesus Christ. जब मूसा नबी को होरेब पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने बुलाया, when God called Moses on that huge Mount Horeb, निर्गमन 20 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देखकर कांप कर दूर खड़े हो गए. निर्गमन 20 अध्याय उसका 18 पद. और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं. And then in verse 18 we read, and then they will heed the voice of you shall come. And is this Nirgaman, Exodus 3? Exodus 20. Exodus 20. Oh, 20. From verse 18 and 19. Yeah. Exodus 20 and verse 18 and 19. And this is what it says here. It says, now all the people witnessed the thundering and the lightning and flashes, the sound of the trumpet and the mountain smoke. When people saw it, they trembled and stood afar from it. And they said to Moses, you shall speak with us, we will hear, but let not God speak to us, lest we die. मूसा नबी उस वक्त जब परमेश्वर के दर्शन के लिए जाता था, कांपता हुआ डरता हुआ जाता था. When Prophet Moses went to see and talk to God, he was with fear and trembling. और बाइबल कहती है कि मूसा सबसे सामर्थी नबी पैदा हुआ है. The Bible says that Moses was one of the greatest prophets ever born. मगर मूसा भी कपकपाता था, थरथराता था, डरता था उस दृश्य को देखकर जिसको रूह कांप जाती थी इस्राएली लोगों की और मूसा की खुद की, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करता था. And Moses, when he went into the presence of God, then he was trembling with fear, and people who were there, they watched that. तब मूसा ने भविष्यवाणी का दर्शन देखा. And that's the time that Moses saw the sight of the prophecy. केवल अपने लिए नहीं परंतु पूरी इस्राएल कौम के लिए उसने दर्शन देखा. This vision is not just for himself, but it is for the entire Israelites. लेकिन मूसा का दर्शन भी थोड़ा धुंधला था. But the vision of Moses was not very clear. वो भी धुंधला था. It was faded. क्योंकि जो कुछ उसने बोला, whatever he said, वो धुंधला देखकर बोला. what he saw in picture not very clear. वो कहना चाहता था, what he wanted to say, मेरे समान नबी आएगा, a prophet will come like me, और उसकी तुम सुनना, and you should hear him, और वो यहोवा का वचन बोलेगा, and he will speak the word of the Lord, और जो कोई उसके वचन को नहीं सुनेगा निश्चय मार डाला जाएगा. and whoever would not listen to that word will be killed. लेकिन मूसा ये
देख नहीं पा रहा था, ये दर्शन नहीं देख पा रहा था ठीक से कि वो नबी नहीं परंतु खुद खुदा आ रहा है। हालेलुया। But what Moses was not able to see clearly, that it was not prophet, but it is the Son. खुद खुदा आ रहा है। God himself is coming. God himself is coming among us. Hallelujah. Amen. मूसा को दर्शन दिए, मूसा ने दर्शन देखे और मूसा ने कहा, और मूसा ने अपने प्राइड के आगे और भी ज्यादा नहीं झुकना चाहता था, इसलिए वो सोच रहा था कि मेरे समान नबी आएगा, खुदा कैसे आ जाएगा, इतना सामर्थ्य खुदा जिसे देखकर रूहें थरथराती और कांपती हैं, उसकी आग और उसके बादल को देखकर पहाड़ कांपते हैं। मूसा सोचता था कि नबी तो जरूर आएगा लेकिन वो मेरे समान होगा। Now Moses, because he saw that great thunder and fire and lightning and the glory of God himself, he thought that it will be somebody like me, not like God. क्योंकि मैं उस धुएं में और उस बादल में चला जाता हूं और जीवते परमेश्वर का दर्शन को प्राप्त करता हूं। Because I went into the smoke and cloud and I see the vision of the living God. मुझे उस दिन का याद आता है, कई वर्ष पहले, This is the story, this is the incident that I remember several years ago. मैं एक पहाड़ पर जा रहा हूं। I'm going on a mountain. Babaji is saying that he's going on a mountain. और पीछे से बादल से घिरा हुआ पहाड़ है और पहाड़ की चोटी पर बहुत बड़ी रोशनी है। And then at the back there's a huge mountain and it is filled with clouds and there's a great light there. और मुझे कहा गया है कि तुम इस पर जाओ। And I have been instructed that I must go up there. और मैं चलने लगा। And I am going there. और मैं चल नहीं पा रहा था क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा था। But because the mountain was very steep, I was not able to climb properly. लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखा, But I saw at the back, रंगीन बादल हैं। there were clouds with different colors. गुलाबी रंग के बादल हैं, Pink clouds, बड़े खूबसूरत बादल हैं। very beautiful clouds. और वो मुझे धक्का दे रहे हैं पीछे से। And they are pushing me from behind. और मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। And I am climbing up there. जैसे ही मैंने बादल की तरफ देखा है, As soon as I looked at the clouds, और वो रंगीन बादल मुझे दिखाई दिए, and those colorful clouds I was able to see, मेरा हृदय आनंद से भर गया। my heart was full of joy. और मैं बहुत शांति के साथ आगे बढ़ने लगा। With peace I started to go up. और जब मैं वहां पहुंचा, And when I came there, तो वो रोशनी ही रोशनी थी वहां। I saw light and light alone. तो उसी लाइट में चला गया मैं। I went into that light. ये मेरा स्वप्न बहुत पुराना है। This is my dream that the Lord showed me. मैं सोचता हूँ मूसा भी इसी प्रकार से बादलों में वो उस भारी ज्योति और भारी आग को देखने के लिए अपनी ताकत से नहीं जा पाता होगा। निश्चय मूसा की मदद पवित्र आत्मा करता होगा। So exactly in the same way I think that Moses also were not able to go up to that mountain in his own strength. Somebody, the Holy Spirit or someone was helping him. खुदाबंद खुद उसकी मदद करता था। God himself came and helped him. जब मूसा को परमेश्वर ने अपनी महिमा के दर्शन दिए, When God showed his glory to Moses, तो उस वक्त परमेश्वर ने मूसा को अपने हथेली के नीचे छुपा लिया था। and then what God did, he hid him under his palm. परमेश्वर हमें खुद ब खुद लेकर चलता है। जैसे भेड़ बकरियों को परमेश्वर एक चरवाहा भेड़ बकरियों को संभाल कर लेकर चलता है, और ख़ास तौर से वो भेड़ें जो बच्चों को दूध पिलाने वाली भेड़ें हैं, उनको धीमे धीमे करके ले जाता है। हम समझते हैं यहोवा परमेश्वर भी हम भेड़ समान मनुष्यों को भी उसी तरीके से उस ज्योति में ले जा रहा है जो हमारी अल्टीमेट डेस्टिनी है, जो हमारा अंतिम पड़ाव है। Just like you see a shepherd taking the sheep on a pasture, and especially those sheep, they are feeding the lamb. In the same way, God also gently carries out. हमारा पड़ाव, अंतिम पड़ाव वो ही ज्योति है जिसमें हमें जाना है। Our last destination is that same light where he is. जो हमने ज्योति देखी, The light that I saw. उसी ज्योति में हमारा अंतिम पड़ाव है। And that is the light destination, the last destination. सबसे ज्यादा जो क्लियर दर्शन प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी के मिले हैं, वो पूरे तरीके से यशाया नबी को मिले या फिर
राजा दाऊद को मिले हैं। The more clarity in the visions and very, very specific are given to the prophet Isaiah or King David. भविष्यवाणी का वचन जो यशाया नबी को मिला उस 7वें अध्याय यशाया के और उसके 14 पद में, जो एहजिया राजा है, राजा अहाज है, उसको संदेश दिया गया। Therefore, this word of the Lord came to Isaiah in Isaiah chapter 7 and verse 14. यशाया ने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? Then Isaiah said to them, hear, O Israel, the house of the Lord, house of David, is it a small thing for you to weary me, but will you weary my God also? इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। Therefore, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखना, और जब तक बुरे को त्यागना, भले को ग्रहण करना न जाने, मक्खन खाएगा। Therefore the Lord himself will give you a sign, behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. इमैनुअल का अर्थ है प्रभु हमारे साथ है, The meaning of the परमेश्वर हमारे साथ है। The meaning of the word Emmanuel is that God is with us. ईश्वर हमारे संग है, God is with us. अब एक कितना क्लियर दर्शन यशाया नबी को मिल रहा है। How clear is this vision that is given to Isaiah the इतना prophet? साफ दर्शन और इतने क्लियर कट भविष्यवाणी मूसा को नहीं मिली, लेकिन यशाया को मिली है, दाऊद को मिली है, और ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। यीशु मसीह का जन्म हुआ एक कुंवारी के द्वारा, माता मरियम के द्वारा, और पवित्र आत्मा से वो जन्मा, और चूंकि परमेश्वर का पुत्र है इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में हुई। Amen. So this was fulfilled when Mother Mary conceived the Lord Jesus Christ and Jesus was born, because Jesus, when he came, that God came among us. और उसके बाद यशाया 9 में और भी ज्यादा भविष्यवाणी क्लियर होती चली जाती है। And then we see in Isaiah chapter 9 more clarity in the vision. तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, पर अंतिम दिनों में ताल की ओर से यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। Nevertheless, the gloom will not be upon her who is distressed, and when at the first he lightly esteemed the land of Zebulun and Naphtali, the land of Naphtali. दूसरे पद में लिखा, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। And then second verse says, the people who are walking in darkness seen a great light. जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। Those who dwell in the land of darkness and meadow of death, upon them the light has shined. हालेलुया, Hallelujah. आप Praise the देखेंगे Lord. प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय Now किस प्रकार से लूका नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसके 8 और 10 पद में, लूका नबी की किताब उसके 2 अध्याय उसके 8 से 10 पद तक लिखा है, उस देश में कितने गड़रिये जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, यानी ज्योति चमकी, और वे बहुत डर गए। स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। Luke chapter 2 and verse 8 onwards we read, now there were many in the country shepherds living in the fields and keeping the watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord came around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be for all the people. और इसका तुम्हारे लिए ये पता होगा, तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते सुनाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन सब मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। And then we read further that this will be a sign for you, that you will find a babe wrapped in a swaddling clothes laying in a manger. And suddenly
there will be an angel of multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth the peace and goodwill towards men. यशाया ने 750 वर्ष पूर्व देखा सब कुछ ये होते हुए देखा, दर्शन में देखा यशाया ने, और उसके बाद लूका नबी ने, मरियम माता ने, इन सब चीज़ों की बातें रिकॉर्ड करी गईं और वो आज हमारे लिए लिखित में पढ़ने के लिए अवेलेबल हैं। और फिर लिखा है 9 अध्याय यशाया के और उसके 6 पद में हम देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। किसी भी हालत में मूसा नबी की भविष्यवाणी में जो घटी और कमी है वो दिखाई देती है। मूसा एक नबी समझ रहा है यीशु मसीह को। So we just read here from Isaiah chapter 9 verse 6, For unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. इसीलिए यशाया नबी को परमेश्वर ने पूरे पूरे सीधे सीधे दर्शन, जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, जब हजारों सालों का अंतराल हो गया, 700 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने यशाया नबी को और साफ तस्वीर दिखा दी कि मसीहा कैसा होगा, मसीहा कौन होगा, मसीहा क्या करेगा, मसीहा है कौन, मसीहा ये है, उसके कांधे पर प्रभुता होगी, गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वंडरफुल काउंसलर है, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार है। ये कौन हो सकता है अदर देन गॉड हिमसेल्फ? Exactly. परमेश्वर के सिवा वो कौन हो सकता है? Moses saw, which was not very clear to him, Isaiah saw it very, very clear and to the very specific, that this God Almighty, Jesus, will come among us and dwell us. And यीशु मसीह ने जो खुद अपनी गवाही दी और कहा, मूसा से बड़ा तुम्हारे बीच में है, सुलेमान से बड़ा तुम्हारे बीच में है, एलिया से बड़ा तुम्हारे बीच में है, और जितने नबी माँ के गर्भ से पैदा हुए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे महान है। And Jesus said, therefore, that all of these prophets, whether it be Moses, Elijah, or whoever, he's the one who is standing before you is greater, because the one who is born of woman, John the Baptist, who is born of the women, he is the greatest among all. परंतु जो एक भी छोटे से छोटा जो परमेश्वर के राज्य में पैदा होता है वो जॉन द बैप्टिस्ट से भी बड़ा है। But the smallest and the littlest in the kingdom of God is bigger than John the Baptist. जो परमेश्वर, जब हम नया जन्म लेते हैं, जब हम परमेश्वर की संतान यीशु मसीह के द्वारा बनते हैं, जैसा कि यीशु ने यूहन्ना के 3 अध्याय में कहा है कि तुझे नया जन्म, नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। जब हम आत्मा से और जल से नया जन्म लेते हैं तो इन सारे नबियों से ज्यादा ऊपर हैं। So therefore, as the Bible says in John chapter 3, when we have the new birth, unless we are born again, when we are born of the Spirit, we are greater than any prophet. तो मूसा की शरीयत में फंसकर लोगों ने मसीहा को नहीं पहचाना। When people went to the law of the Moses, they could not understand and find Jesus. परंतु उन्होंने भविष्यवाणी के वचन को नहीं देखा, because they didn't see the word of prophecy there. आज भी करोड़ों लोग मूसा की शरीयत में फंसकर मसीहा को पहचान नहीं रहे हैं। And even today many people who are stuck in the law or the shariat of Moses, they are not able to recognize Jesus. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि मुक्ति और उद्धार किसे मिलेगा। 17 पद उसके 3 अध्याय यूहन्ना के लिखा है कि परमेश्वर पिता को और उसके मसीहा को जिसे उसने भेजा है जानना ही अनंत जीवन है। Knowing Jesus Christ and the Father who sent him is eternal life. Amen. Amen. John chapter 17 verse 3. Don't you consider yourself the most privileged people of the world today? यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। क्या अपने आप को सबसे ज्यादा privileged
लोग आज आप समझते हो कि नहीं अपने आप को? डू यू कंसिडर योर सेल्फ द मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल क्या आप एवर बोर्न ऑन अर्थ? टुडे यू आर. क्या आप ये पहचान रहे हैं कि आप सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं कि परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है? You are living in the light. The darkness is over. The darkness of the world is over. You are living in the light of Jesus Christ, the Son of the living God. यीशु मसीह ने अंधकार को हटा दिया क्योंकि वो ज्योति है. और आप अंधकार में नहीं रह रहे हो. अब आप अंधकार में नहीं रह गए, आप ज्योति में रह रहे हो. You are in the light. और ये ज्योति यीशु मसीह की खुद की ज्योति है. And this light is the light of Jesus himself. जिस ज्योति की भविष्यवाणी यशाया नबी ने 9 अध्याय में किया. This is the light the prophet Isaiah has prophesied in chapter 9. जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा. Those who are walking in darkness, they saw a great light. और जो घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी. Those who dwelt in the land of shadow of death, upon them a light has shined. ये सारी बातें परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी आत्मा की ताकत के द्वारा पूरी हो रही हैं. हर भविष्यवाणी. All of these things are being fulfilled by the Spirit of God and the power of His might. यीशु मसीह ने क्या नहीं किया? What is that Jesus Christ hasn't done? सब कुछ करने के बाद अंतिम समय तक वो करते ही रहे. अगर हम देखें उन 2 पापियों का जिक्र, 2 अपराधियों का जिक्र, जो कुछ देर पहले एक दाहिने और बाएं 2 अपराधी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर टंगे. If you see those 2 thieves, they were hung with Jesus Christ on either side and Jesus was in the middle of them. यीशु मसीह का मिशन और उनका दर्शन एक ही है, इस पापियों का उद्धार. There was only one of them who was able to see the Lord Jesus Christ and saw the vision of him. और चंगाई, उद्धार और मृत्यु से जीवन में लाने की शक्ति केवल परमेश्वर के हाथों में है. And only God has the power of healing, redemption and salvation. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह कैसे ये संभव हो सकता है. अगर आप मेरा फ्राइडे का मैसेज, शायद लास्ट थर्सडे का मैसेज सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी यीशु मसीह के बारे में. If you go online, you will hear the message which was given yesterday. It will be more clear to you. So please go and listen to that message. ये उद्धार करता यीशु मसीह, This Savior, the Lord Jesus Christ. आप देखिए यशाया नबी की किताब उसका 53 अध्याय, ये फॉरबिडन स्क्रिप्चर है यहूदियों के जगत में. इस्राएली लोगों के मध्य में ये स्क्रिप्चर पढ़ा नहीं जाता है. इसको वो भयभीत हो जाते हैं इसको पढ़ने के बाद. और इसलिए अक्सर अगर किसी इस्राएली ने, किसी यहूदी ने यशाया 53 की बात की तो वो एकदम उसको डांट दिया जाता है. रब्बाई उसे डांट देते हैं. Now we know the truth that today, even today, it is a fact that Isaiah chapter 53 is not read, and many times it is prohibited because it clearly defines and shows who Jesus Christ is and when he is coming. यशाया 52 उसका 13 पद से हम देखेंगे. Isaiah chapter 52 and verse 13 we'll see. देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा. And it says here, behold, my servant shall deal prudently. वो ऊंचा होगा. He shall be exalted and अति महान हो जाएगा. and extolled and very high. जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित होते, Just as many were astonished at you. क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था. उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी. So his appearance was marred more than any man, and his form more than the sons of men. सोचिए, किसी मनुष्य पर, एक जवान 33 साल का मनुष्य है, जवान है, 39 कोड़े उसके पीठ पर मारे जाएं तो उसकी पीठ बिल्कुल छिल जाएगी, लहूलुहान हो जाएगी. और वो मामूली कोड़े नहीं थे,
उन कोड़ों में कांटे लगे हुए थे, जिससे मांस उधड़ जाता था, खाल उधड़ जाती थी उस कोड़े को मारने से। और कोड़े कपड़ा उतार के लगाए जाते थे पीठ पर। कितना यीशु को दर्द हुआ होगा, कितना लहू बहा होगा, आप सोचिए जरा। और उसके बाद सर पर कांटों का ताज ठूंस दिया जाता है, हाथों में कीलें ठोक दी जाती हैं, पैरों में कीले हैं, लहू सर से पैर तक बह रहा है। रात भर बृहस्पतिवार की रात और शुक्रवार का पूरा दिन होता चला जा रहा है। उसके अंदर कितना दुख और पीड़ा रही है। शक्ल बिगड़ गई है, बाल में खून है, बालों में खून है, और बाल जब खून से लथपथ हो गए हैं तो क्या से शक्ल बिगड़ गई थी यीशु की, पहचान नहीं आ रहा था, सारी खूबसूरती खत्म हो गई थी। Think about this, that this young man, the Lord Jesus Christ, perhaps 31 years old, he is stripped so bad with the stripes which has metal bullets, and his flesh came out, and he's beaten, and all of these things, he's going through this great agony and suffering for us. That he was so much tortured that we could not even recognize if he was a man. That's what the verse 14 says here. क्या ये वचन पूरा नहीं हुआ? Does this verse 14 of Isaiah, is it not fulfilled in Jesus Christ? 700 साल पहले यीशु के बारे में कहा गया था, 700 साल पहले यीशु के जन्म के बारे में कहा गया था, उनके दुख उठाए जाने के बारे में 700 साल बोला गया था, और वो पूरा होते हुए दिख रहा है। 700 years ago, the birth and the life and the death and resurrection of Jesus was prophesied, and it was now fulfilled. यशाया 53 में इस प्रकार लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वो अब उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा कि निर्जल भूमि फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही ऐसा था दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यह हालत हो गई थी। यीशु मसीह को क्रूस पर टांगने के बाद उनकी शक्ल बिगड़ गई थी, उनके शरीर लहू लुहान हो गया था, पहचान में नहीं आ रहे थे कि ये मनुष्य हैं। वही खूबसूरत जवान है जो 33 वर्ष का सुंदर जवान, जिसके चेहरे से रोशनी चमकती थी, अचानक वो रोशनी कहाँ हट गई? अचानक उसकी शक्ल सूरत कैसे बिगड़ गई जो पहचान में नहीं आ रहा है? ये भविष्यवाणी का वचन है। यशाया ने 700 साल पहले यीशु का दुख उठाया जाना देखा है। What we just read in Isaiah 53, that his face was so much beaten down, his body so much beaten down that he was not being able to recognize, and it was fulfilled in the suffering of Jesus Christ on the cross of Calvary. वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के चेले भी उन्हें छोड़कर भाग गए थे, त्याग दिया था। उन हजारों लोगों को, 5000 लोगों को, जिन्हें 5 रोटी और 2 मछली से यीशु ने 5000 लोगों को खिलाया, 10,000 लोगों को मुफ्त में भोजन कराया यीशु ने चलते चलते। कहां चली गई वो भीड़? कहां भाग गए वो 10 कोढ़ी जिन्हें यीशु ने शुद्ध किया था? कहां गया वो पैरालिटिक जो 38 साल से नीचे पड़ा हुआ था, उसको यीशु ने उठा के खड़ा किया? कहां चला गया वो? कहां चले गए पीटर जिनकी सांस को उसने चंगा किया था? कहां चला गया पतरस जिसको पानी पर यीशु ने चलाया था और डूबते हुए हाथों से निकाला था? कहां भाग गए ये सब? That's what we read here. Surely he was borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him not. He was stricken and smitten of God, afflicted. Third verse, पढ़िए Third verse. He is despised and rejected by men, man of sorrow, acquainted with grief. We did not esteem him, and we despise him and did not esteem him. So what is happening here? That this prophecy exactly was fulfilled on the cross of Calvary, because all his disciples left, all the people who have received healing, thousands of people who have been fed, none of them was there.
He was despised. हजारों लोगों को उसने चंगा किया। वो मुर्दा कहाँ चला गया जिसको जिंदा किया? वो फरीसी कहाँ चला गया? वो सरदार, वो जो काहिन, जो कि सिनेगॉग का इंचार्ज था, मालिक था, जिसकी बेटी को 12 साल की उसने जिंदा किया, वो कहाँ चला गया? So many of these incidents that Jesus healed them, the dead man who came to life, and this soldier whose daughter was sick and she was healed. Many people like this. Priest of the synagogue, the priest of the synagogue, he was healed. I mean, her daughter was healed. His daughter was servant raised from the dead. And raised from the dead. And then many other, the lame and the blind men who are able to see. What happened to them? Why did not they come there to see Jesus? They all ran away. सब भाग गए. They all ran away. Nobody was there. जैसा यशाया ने कहा है, वो तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था और सबसे ज्यादा दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान थी। यीशु मसीह जिसके सर पर हाथ रखता था वो चंगा हो जाता था। उससे बड़ा डॉक्टर कभी पैदा नहीं हुआ, न कभी होगा। Hallelujah. Jesus Christ is the greatest doctor and ever will be. No one is greater than him, because whoever he put his hand upon, that person was instantaneously healed. उस लड़की के 12 साल से लहू बह रहा था। That woman who had bleeding for 12 years. यीशु के कपड़े का किनारा छू लिया और मन में कहती थी कि यदि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी हो गई। She had only that faith that if I touch the garment hem of Jesus, I will be healed. And according to her faith, she was healed. कितने बहरों के कान खोले, कितने गूंगों की जुबान खोली, कितने लगड़ों को चलाया, कितने पैरालिटिक को ठीक किया, कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला, पागलों को चंगा किया। यीशु ने सब कुछ भला किया। And we know that many things are not even recorded, but they are recorded, that many people he healed who could not speak, many people who could not see, they can see, many people who are lame, they can walk. He did all those things. रोग से उसकी जान पहचान थी। He knew what sickness was. मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने सब कुछ किया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। चौथा पद, That's what Bible says, Isaiah 53:4. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken and smitten by God and afflicted. परंतु वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कामों के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। But he was wounded for our transgressions, he was chastised because of us, he was bruised because of our iniquities, and by his stripes we are healed. हम तो सब के सब भटक गए थे, भेड़ों के समान भटक गए थे। All हम में से we हर like एक ने sheep. अपना अपना मार्ग लिया। We were like sheep gone away and we took our own ways. यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। But God laid upon him the iniquity of us all. वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। He was oppressed and he was afflicted, and yet he opened not his mouth. He is led as a lamb to be slaughtered, as a sheep before its shearers, he was silent. He opened not his mouth. अत्याचार करके दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों ने इस पर क्या ध्यान दिया? वो जीवतों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, परंतु मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। He was taken from prison, from judgment, and who will declare his generation? He was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people he was stricken, and they made him his grave with the wicked, but with the rich at his death, because he has done no violence, no deceit was found in his mouth. तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया
और जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तो वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा और यहोवा की इच्छा पूरी करेगा। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा धर्मी बहुतेरे लोगों को धर्मी ठहराएगा और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। वर्स 10 and 11। Yet it was pleased to the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul as an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the labor of his soul and be satisfied. By his knowledge my righteous servant shall justify many. यीशु मसीह का वंश कौन है? प्राण का लिखा हुआ, वो अपना प्राण दोष बलि करे। It is written here that he had given his soul as an offering. मतलब एक तरीके से एक निष्पाप और निष्कलंक मेमना बनकर हमारे गुनाह और पापों का दंड अपनी देह पर उठाकर पाप का दंड मृत्यु क्रूस पर उठा ले, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाए जाने से हम चंगे होते हैं। So just like a lamb, he had gone there to the cross of Calvary, a lamb which was without blemish, and he took our sins upon himself so that by his offering we might become the righteousness of God. व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, The law परंतु was given by अनुग्रह Moses. और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। But righteousness and truth came by Jesus. रोमियो के 6 उसका 23 पद कहता है, पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। Romans 6:23 says that the wages of sin is death, but in the Lord Jesus Christ our gift in eternal life is. तो why did Jesus die on the cross? What kind of sin he committed? अरे आपको इंग्लिश में बोलना है, हमें हिंदी में बोलना है, गड़बड़ा गया है। रेसलिंग में गड़बड़ होगी। So let us come back to the मैंने कहा कि यीशु मसीह, पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब पाप का दंड मृत्यु तो यीशु मसीह क्यों उठा रहा है मृत्यु? उसको मृत्यु दंड क्यों दिया जा रहा है? The question is that if the wages of sin is death, then why is it that Jesus Christ is going to the cross? वो तो निष्कलंक है, निष्पाप है, उसने कोई पाप नहीं किया। He has not committed any sin. He is without sin. He knew no sin. लेकिन उसने पापियों को पाप से क्षमा किया। He forgave sinners of their sin. उसने उस अधिकार का इस्तेमाल किया मनुष्य के रूप में। He used that authority as a man. पाप की क्षमा केवल परमेश्वर कर सकता है। Only God has the right to forgive sins. मृत्यु और जीवन परमेश्वर के हाथ में है। Life and death is in the hand of God. परंतु यीशु मसीह उस जीवन और मृत्यु की शक्ति और अधिकार को लेकर मानव के रूप में पृथ्वी पर उतरे। But Jesus, taking that authority and that power, became man and came down on earth. इसलिए यीशु मसीह नबी नहीं है। Therefore Jesus Christ is not a prophet. वो खुदा है। He is God himself. क्योंकि गुनाह को क्षमा करने की शक्ति और अधिकार केवल परमेश्वर का है। Because the power to forgive sins is only in the hands of God. परंतु वो मनुष्यों में इसलिए ले आया कि मनुष्यों को बिना पाप क्षमा किए हुए अनंत जीवन नहीं मिल सकता है। He had to come among men because without the forgiveness of sin, men cannot have life eternal. हालेलुया। Hallelujah. Praise the इसलिए Lord. बड़ा आवश्यक है कि हम इस बात को समझ लें Therefore it is very important that we understand this, कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह that the Son of God, the Lord Jesus Christ, मेरे और आपके वास्ते क्रूस पर चढ़ा for me and you, he came to the cross of Calvary. और उसका वंश हम और आप हैं। Because his generation is we are. यशाया 53 की भविष्यवाणी में पुनरुत्थान भी है, जीवन भी है और जनरेशंस भी हैं। In the prophecy of Isaiah 53,
there is life, resurrection, eternal life, and what do you call जनरेशंस, वंश भी हैं, यीशु मसीह के वंश भी भी हैं। हैं। तो यीशु मसीह के वंश कौन हैं? Who are the generation of Jesus? यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया John उन 1:12 says, सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। anyone who has believed, everyone who would believe, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार कोई मामूली अधिकार नहीं है मेरे प्रियो। they have the authority and power to become the children of God, and it's not an ordinary thing. परमेश्वर का क्या रिलीजन है? क्या वो ईसाई है? परमेश्वर क्या है? What is the religion of God? Is he Isai? अगर परमेश्वर का कोई रिलीजन नहीं है तो परमेश्वर के बेटे और बेटियों का कैसे रिलीजन हो सकता है? If God does not have any religion, then how come his children, sons and daughters have a religion? तो गुड फ्राइडे और ईस्टर ये जो फेस्टिवल हैं ये ईसाइयों के नहीं है केवल, ये सारी दुनिया के लिए है। This Good Friday and Easter, these are not the festivals only for Christians. यीशु मसीह की कुर्बानी पूरी मानव जाति के लिए कि सारी मानव जाति ने पाप किया है और हर मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है, इसलिए परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में लाया है। Because all have sinned and come short of the glory of God, therefore the Son of God died for all of us on the cross of Calvary. सो हम लोग अब इस छठे शब्द को समाप्त करते हैं और सातवां शब्द फिर लेंगे